اس قسط کے آغاز میں دمدار نے جرگہ بلایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دمدار قرآن پاک پر حلف دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس قرآن پاک، اپنے جھنڈے اور اپنے آباء و اجداد کی تلوار پر قسم کھاتا ہوں۔ قرآن پاک اور اپنے شاندار پرچم کی خاطر اگر میں اپنے دین یا آباء و اجداد کی روایات سے بھٹکا، اگر میں نے اپنے بھائی کے رستے کو چھوڑا تو میں اپنی تلوار کی تیز دھار سے کٹ جاؤں۔ اس کے بعد ہائمہ خاتون دمدار کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک شخص دوسرے آدمی سے پوچھتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا ارطغرل ٹھیک ہے، کیا وہ زندہ بچے گا؟ دوسرا آدمی کہتا ہے اس کے اندر کا غصہ اسے زندہ رکھے گا، فکر نہ کرو۔ پہلے والا آدمی کہتا ہے وہاں اصل میں ہوا کیا تھا، مجھے سب کچھ بتاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے وہاں ذرا بھی سوراخ چھوڑا اس کی قیمت ہمیں اپنی جانوں سے چکانی پڑے گی۔ دوسرا شخص کہتا ہے کمانڈر آرس اور اس کے سپاہیوں نے ڈاکوؤں کے بھیس میں ارطغرل کو جال میں پھنسایا تھا۔ وہ بہت خون ریز لڑائی تھی، میں نے آرس کا چہرہ دیکھا تھا جب وہ زخمی ہوا تھا، وہ وہی تھا۔ پہلا شخص کہتا ہے یقیناً آرس ترکوں کے ساتھ معاہدہ توڑے بغیر ارطغرل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ارطغرل کیسے بچ گیا؟ دوسرا شخص کہتا ہے اس کے 2 سپاہی اسے شدید زخمی حالت میں وہاں سے لے گئے تھے، میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا، وہ کہہ رہے تھے حضور ہم پہنچنے والے ہیں، حضور حوصلہ کریں، حضور حوصلہ کریں۔ I did it. ارطغرل کے سپاہیوں نے اپنی جان ارطغرل کے لیے قربان کر دی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ارطغرل کو میرے سپرد کر دیا۔ پہلا شخص کہتا ہے لیکن تم نے لاش کا معاملہ کیسے حل کیا اور اس کے گھر والے اور سپاہی کیسے اس پر قائل ہو گئے کہ وہ مر گیا؟ پہلا شخص کہتا ہے میں نے ارطغرل کی انگوٹھی زیگر اتار لی اور آرس کے ایک آدمی کو پہنا دی، پھر میں نے اس کو آگ لگا دی۔ پہلا شخص کہتا ہے بہت خوب، کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں، اس بات کا یقین ہے تمہیں؟ دوسرا شخص کہتا ہے اطمینان رکھیں، صرف ہم دونوں سچائی جانتے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے اینتھوس ہم نے زبردست کام کیا ہے، اب ہمارے ہاتھوں میں ایسی طاقت آئی ہے کہ دونوں ریاستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی ہمارے پاس بہت مضبوط صلاحیت ہے۔ اینتھوس کہتا ہے تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ پہلا شخص کہتا ہے اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ارطغرل صاحب کو زندہ رکھنا ہوگا، ہمیں مردہ نہیں بلکہ زندہ انسان کی ضرورت ہے۔ آرس مردہ ارطغرل سے خوف نہیں کھائے گا بلکہ زندہ ارطغرل سے جو سانسیں لے رہا ہو اس سے ضرور خوف کھائے گا۔ اینتھوس کہتا ہے لہٰذا ہم جتنا سونا چاہیں گے وہ ہمیں دے گا، اور سب سے بڑھ کر تم نے آرس کو ماریا جیسی خوبصورت کنیز دے دی۔ اس کے بعد اگلے سین میں وہ دونوں ارطغرل کے پاس غار میں جاتے ہیں۔ اور وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ارطغرل سانس لے رہا ہے۔ وہ شخص ارطغرل سے کہتا ہے تمہاری نفرت تمہیں زندہ رکھے گی، اپنی نفرت کو زندہ رکھو تاکہ تم ہمیں امیر بنا سکو۔
इसके बाद अर्तुरुल को होश आ जाता है। अर्तुरुल कहता है, तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं से निकाला, या रब अपने इस लाचार बंदे की भी इस हैबतनाक सूरत हाल में मदद कर, मेरी मदद कर। अर्तुरुल ये बार बार पुकार रहा होता है। इसके बाद सादातीन के पास तुर्गुत आता है। सादातीन तुर्गुत से कहता है, सुल्तान ने तुम्हें क्या हुक्म दिया तुर्गुत? तुर्गुत कहता है, इन्होंने मुझे ये पता लगाने का हुक्म दिया कि क्या हुआ है, और जब तक अर्तुरुल न मिल जाए मैं वापस न आऊं। सादातीन कहता है, तुम्हें पता चल गया कि क्या हुआ है, और अब जबकि तुमने अर्तुरुल को ढूंढ भी लिया, अब यहाँ मजीद रुकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुर्गुत कहता है, मैंने अर्तुरुल साहब को तो ढूंढ लिया, लेकिन जिन्होंने ये किया इनको ढूंढने से पहले। सादातीन बात काटते हुए कहता है, जिन्होंने ये किया वो यकीनन मिल जाएंगे। सल्जूकी अमीर यहाँ मौजूद है, दुमदार साहब यहाँ हैं, तुम्हारी अफादियत यहाँ खत्म हो गई है, तुम्हारा फर्ज पूरा हो चुका है तुर्गुत, हमारी फौज मुहिम पर है, अब तुम्हें मुहिम में शामिल होना है। कल पू फटते ही अपने सिपाहियों को लो और रवाना हो जाओ, यहाँ के मामलात के बारे में तुम फिक्र न करो। इसके बाद अगले सीन में एंथोस अर्तुरुल के जख्मों पर मरहम लगाता हुआ नजर आता है। इसके बाद एंथोस अर्तुरुल का इलाज कर रहा होता है। अर्तुरुल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ? एंथोस कहता है, आप महफूज हाथों में हैं अर्तुरुल, खुद को जहमत मत दें, आप अभी बहुत कमजोर हैं। इसके बाद अर्तुरुल मुकम्मल तौर पर होश में आ जाता है और उठ बैठता है और खड़ा होने की कोशिश करता है, जबकि वो गिर जाता है। एंथोस कहता है, आप खुद को जहमत मत दें, आप अभी बहुत कमजोर हैं। एंथोस कहता है, देखें मैंने आपके लिए यखनी बनाई है, चलें थोड़ी सी पी लें। अर्तुरुल कहता है, ये यखनी पीने का वक्त नहीं, मेरे सिपाही कहाँ हैं? तुम कौन हो? एंथोस कहता है, मुझे आप जख्मी हालत में मिले थे, मुझे अपना दोस्त समझें, चलें खाना खाएं ताकि आप जल्द अज जल्द सेहतयाब हो सकें। अर्तुरुल उसे रोक देता है और कहता है, मेरी सेहत तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों है? एंथोस कहता है, ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये हर उस शख्स के लिए अहम है जो आपसे मोहब्बत करता है अर्तुरुल, आपके प्यारे आपके मुंतजिर हैं। अर्तुरुल कहता है, क्या तुम्हें इनकी सूरत हाल का कुछ पता है? एंथोस कहता है, आप खुद पर बहुत जोर दे रहे हैं, अगर आप ऐसा करते रहे तो आप इनमें से किसी को नहीं मिल सकेंगे। देखें, आपको जो मालूम करना है मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना है। शाबाश, जिद मत करें, सेहतयाबी के लिए तमाम कोशिशें करें। अगले सीन में गवर्नर आरिस कहता है, अर्तुरुल की मौत के बाद काराचाइसार का माहौल बदल गया है। वो अपने सिपाही से पूछता है, काई क्या कर रहे हैं? सिपाही जवाब देता है, वो अभी तक अर्तुरुल की मौत के गम से नहीं निकल पा रहे जनाब, मुमकिन है कि वो इतनी आसानी से नहीं संभलेंगे। आरिस कहता है कि अगर इन्हें पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो वो इन दिनों को नेमत समझेंगे। सिपाही आरिस से कहता है, जनाब हम हालनी बाजार को हासिल करने के लिए कब कार्रवाई करेंगे? आरिस कहता है कि बहुत जल्द। क्या तुमने डाकुओं के सरदार मिहाली को खबर भेज दी? सिपाही कहता है, भेज दी जनाब। आरिस कहता है, इसने काफिलों को लूटने का बहुत याद किया होगा, इस खबर से वो बहुत खुश होगा। इसके बाद अमीर सादातीन आरिस से मिलने काराचाइसार किले में आ जाता है। आरिस सादातीन को खुशामदीद कहता है। आरिस सादातीन से कहता है, हमने आपकी आमद के एजाज में ज़ियाफत का इंतजाम किया है, यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। अगले सीन में बहादुर कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन की फौज के साथ मिलकर हम दुश्मन को नाको चने चबवा देंगे, हम अपने चावदार जवानों की बहादुरी पूरी दुनिया को दिखा देंगे। हमारा कबीला हमारे पीछे मजबूती से खड़ा है और मेरे भाई का कबीला हमारे सामने है। अब दोनों की सरदारी का दावा करने का वक्त आ गया, नए हमले और नया माले गनीमत हमारा मुंतजिर है। इसके बाद कारातुंगा बहादुर पर तीर से हमला करने की कोशिश करता है और उसे बहादुर का बेटा पकड़ लेता है और अपने बाप के सामने पेश करता है। बहादुर कहता है, कारातुंगा तुम मेरे कबीले के सरदारान में से थे,
तुम मेरी बीवी काराचा के भाई थे। मैंने कभी भी तुम्हें अपने बेटे सांजार से अलग नहीं समझा, लेकिन तुम मेरी बीवी को मुझे कत्ल करने के लिए उकसाना चाहते थे और तुम्हारी सरदारी में तुम्हारी मदद के लिए है। कारातुंगा अपनी बहन से कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने ही भाई पर अपने ही खून और गोश्त का इल्जाम लगा दिया। कारातुंगा की बहन कहती है मेरी जान, मेरा खून, मेरी जिंदगी अब बहादुर साहब हैं, मेरा तुम्हारे जैसा भाई नहीं हो सकता। इसके बाद बहादुर की बीवी बहादुर से कहती है इस गद्दार का सर काटने का शर्फ आपका है। बहादुर कहता है जो कोई मेरी अताअत से इनकार करेगा और मेरी सरदारी के खिलाफ बगावत करेगा, इसकी कीमत इसका सर होगा। इसके बाद बहादुर कारातुंगा का सर उतार देता है। इसके बाद बहादुर की बीवी उसके हाथ धुलाते हुए कहती है सिर्फ अपना भाई ही नहीं बल्कि मैं अपनी जिंदगी भी आप पर कुर्बान कर दूंगी हजूर, ताकि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। बहादुर कहता है जब तक मेरा बहादुर बेटा और मेरे बहादुर सिपाही मेरे साथ हैं, कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। बहादुर का बेटा कहता है बाबा हम चौदार कबीले के करीब पहुंच गए हैं। बहादुर कहता है ये चौदार कबीला मेरे आबाओ अजदाद हैं और मेरे भाई जानदार का कबीला है। इसके बाद अब ये मेरा कबीला भी बन जाएगा। हमारे पीछे अजीम अमीर सादातीन हैं। अब इन जमीनों पर हमारी हुक्मरानी का वक्त है। सादातीन के पास कोकतूक आता है और कहता है हम काराचाई साथ जाने के लिए तैयार हैं अमीर हजरत। सादातीन कहता है आला चलो अपने मुमकिन शराकतदार को मजीद इंतजार नहीं करवाते। गोकतुक कहता है गुस्ताखी माफ अमीर हजरत, लेकिन मैं अभी भी ये समझ नहीं सका। सादातीन कहता है अपनी आंखें खोलो गोकतुक, हमें क्यों बिला वजह यहाँ खामोशी से बैठकर ये देखना चाहिए कि दिन कैसे रात कैसे में बदलता है। हमें अपने मफादात के पीछे जाने की जरूरत है। देखो हर साने के बाद एक नया दरवाजा कहीं न कहीं खुलता है। जो इस दरवाजे को ढूंढ लेता है जीत इसी की होती है। हमारे लिए वो दरवाजा हानली बाजार का दरवाजा है। किस्मत का पहिया एक बार फिर हमारे हक में घूमेगा। और हाँ बहादुर साहब की क्या उनकी कोई खबर आई? गोकतुक कहता है वो रास्ते में है जनाब, उन्हें यहाँ पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सादातीन कहता है बहादुर साहब हमारे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि असलहान को इस ओहदे से हटाने वाले जानदार का भाई बहादुर साहब हैं। बहादुर मेरे लिए असलहान से शादी करने का मौका निकालेगा और वो मेरे लिए चौदार कबीले का दरवाजा खोलेगा। अगले सीन में अरतुरुल की तबीयत कुछ संभल जाती है और वो खड़ा हो जाता है। हम एक दूसरे के पीछे भागते रहे, लेकिन वेस्लियस तुम हर दफा दूर भागते रहे। तो तुम मेरी जमीनें अपने सुल्तान को दिखा रहे हो, तो किस्मत में तुम दोनों से एक साथ मिलना लिखा था। वेस्लियस सुल्तान से तो तुम अपने ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। अब नहीं, ये एक जाल है, हमला करो। वेस्लियस तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। तुम शायद मुझे मार दो, लेकिन हमारी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी अरतुरुल। जैसे ही अरतुरुल वेस्लियस को कत्ल करने के लिए तलवार बुलंद करता है तो दूसरी तरफ से उन पर हमला हो जाता है और एक तीर अरतुरुल को जा लगता है। तुर्गुत अरतुरुल से कहता है भाई क्या आप ठीक हैं? अरतुरुल कहता है तुर्गुत तीर बाहर खींचो, इसे बाहर खींच लो। तुर्गुत कहता है भाई अगर मैंने इसे बाहर खींचा तो आपका बहुत खून जाया होगा। इसके जवाब में अरतुरुल कहता है तीर बाहर खींचो, खींच लो तुर्गुत, वरना वेस्लियस भाग जाएगा। तुर्गुत बिस्मिल्लाह पढ़कर तीर बाहर खींच लेता है। इसके बाद अगले सीन में सादातीन कोपैक आईने में अपनी शक्ल देख रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है अमीर हजरत आपके हुक्म के मुताबिक मैंने वेस्लियस को बचाने के लिए गुंडे भेज दिए हैं, वो अरतुरुल को मारे बगैर वापस नहीं आएंगे। सादातीन कोपैक कहता है तुम्हें इन किराए के कातिलों पर भरोसा तो है ना? सिपाही कहता है वो सब मेरे ताबे हैं, वो मर तो जाएंगे मगर ये राज नहीं खोलेंगे। सादातीन कोपैक कहता है आला, बहुत आला, जाबर यकीनी बनाओ कि कोई मसला ना हो, तुम और तुम्हारे आदमी हिफाजत पर मामूर होंगे। इतने में बाहर से आवाज आती है मैं अंदर आ सकता हूँ? सादातीन कहता है आ जाओ अंदर। वो आदमी सादातीन से कहता है अमीर हजरत सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं। सादातीन गुस्से से कहता है जाओ जाओ यहाँ से। इसके बाद अगले सीन में कमांडर निकोलस के पास एक सिपाही आता है और कहता है बाजार की निगरानी करने वाले हमारे सिपाहियों का पैगाम आया है। निकोलस कहता है क्या बात है, क्या हुआ? सिपाही कहता है सुल्तान और उसके बंदे चले गए मगर हिफाजती इकदामात अभी भी वही हैं। ऐसा लगता है कि इनको हमले की तवक्का है। निकोलस कहता है अगर सुल्तान चला गया है तो इन्होंने अभी भी हिफाजत
हिफाजती इक़दामात किस लिए उठाए हैं? हाँ, अगर सुल्तान का जाना एक ड्रामा हुआ तो फिर? सिपाही कहता है ये कैसे मुमकिन है? निकोलस कहता है अर्तुगरुल इसने हमें धोखा दिया है। इसने गवर्नर वेस्लियस और हमारे सिपाहियों को अपने पीछे लगाया। इसे अंदाजा हो गया था कि हम सुल्तान को मारने के लिए सराय पर हमला करेंगे। उनकी ये चाल इसको रोकने के लिए थी। सिपाही कहता है अच्छा तो हम अब क्या करने वाले हैं कमांडर नेकुलस? नेकुलस कहता है हम गवर्नर वेस्लियस का इंतजार किए बगैर सराय पर हमला करेंगे। अगले सीन में सुल्तान सादातीन से कहता है इस चीज में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि इनको अंदाजा हो कि जैसे ही इनको ये अंदाजा होगा वो हानली बाजार पर हमला कर देंगे। सादातीन कहता है सुल्तान मैंने बादाते खुद तमाम इकदामात उठा रखे हैं। आपको अपने खून से वो शैतानी जहर खारिज करने के लिए मजीद आराम करना चाहिए। सुल्तान कहता है मैं ठीक हूँ सादातीन, मैं ठीक हूँ, मुझे दुश्मन की फिक्र नहीं है बल्कि अपने दरमियान मौजूद गद्दार की है। सादातीन कहता है सुल्तान हम नहीं जानते कि आपको किसने जहर दिया और कब दिया। आप दोनों कबाइल के मेहमान थे। ये मनहूस हादसा इस दौरान पेश आया जब आप इनसे मिल रहे थे, लेकिन हम इसे तलाश कर लेंगे। सुल्तान कहता है मेरे ख्याल में ये बदकिरदार सराय में हमारे बीच है। सादातीन कहता है जो भी है वो जिस चीज का मुस्तहिक है इसे मिलेगा। सुल्तान कहता है सादातीन मैं मालूम करूंगा कि ये किसने किया। इसके बाद अगले सीन में बमसी अर्तुगरुल के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है भाई ये वाज़ेह नहीं हुआ कि वो बदकिरदार कौन थे। 2 को तो हमने घेर लिया मगर 3 भाग गए। तुर्गुत कहता है यकीनन वो माहिर तीर अंदाज थे, हम खतरे से बाहर नहीं हैं भाई। अर्तुगरुल कहता है वेस्लियस फिर भाग गया। बमसी कहता है बुज़दिल दफा हो गया भाई, इसके पीछे जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है गुनगुन दुमरुल पहले सबके जख्मों की निगहदाश्त करो, फिर जख्मी सिपाहियों को सराय ले जाओ, यहाँ जो भी हुआ सुल्तान को सब बताओ। दुमरुल कहता है जो हुक्म आपका भाई। इसके बाद अर्तुगरुल बमसी और तुर्गुत से कहता है हम वेस्लियस के पीछे जा रहे हैं, 2 सिपाही साथ ले लो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो उसका सिपाही कहता है आका हमारे घोड़े इस तरफ हैं। वेस्लियस कहता है बेवकूफ हम भाग नहीं रहे, अर्तुगरुल और उसके आदमी हमारा ताकुब करेंगे, इसका अंजाम होगा और आज ही होगा, या तो वो रहेगा या मैं, ये आखिरी लड़ाई होगी, फिर अगली बारी सुल्तान की होगी। अगले सीन में निकोलस कहता है सराय में कोई सिपाही नहीं, ये गैर महफूज हैं। सिपाहियों को चुपके से नदी के रास्ते ले जा किस्त के आगाज में अर्तुगरुल की जली हुई लाश का जनाजा बनाकर लाया जा रहा होता है और बमसी जख्मी हालत में बाहर आ जाता है। हलीना उसे बमसी बमसी कहकर रोकती है। बमसी हलीना से कहता है इस बार तुम किसको परचम में लपेट कर लाए हो? हलीना बमसी से कहती है मैं आपकी मिन्नत करती हूँ अंदर चलते हैं। बमसी आप मेरे साथ अंदर रुकें। बमसी हलीना का हाथ छुड़ाकर आगे भागता है। हलीना बमसी को रोकती है खुदारा मेरे साथ रुकें, यहीं रहें। बमसी जाते हुए जनाजे को रोक कर कहता है रुक जाओ रुक जाओ। बमसी जाकर जनाजे को रोक लेता है और कहता है नहीं कौन है ये, कौन है ये? वो सब जनाजा वहीं रख देते हैं। सब लोग बमसी को रोकते हैं कि रुक जाओ तुम इसको मत देखो। सब लोग गम के मारे मातम करने लगते हैं और एक क़यामत का समा बन जाता है। बमसी हाइमा खातून से मुखातिब होता है और कहता है अम्मी जान कह दें ये वो नहीं है। हाइमा कहती है ये मुमकिन नहीं है। बमसी दोबारा कहता है कि कह दें कि ये हमारे सरदार नहीं है। हाइमा खातून मेरे बेटे कहकर रोने लगती है। बमसी कहता है कह दें कि हमारे भाई आग में नहीं जले, कह दें कि वो नहीं जलाए गए, हमारे भाई अल्लाह की खातिर शहीद हो गए, कह दें कि आग अल्लाह के बहादुर को नहीं जला सकती। इतने में वहाँ तुर्गुत का काफिला भी आ जाता है। तुर्गुत सबको मातम करता हुआ देखता है। इतने में अर्तुगरुल का बेटा भी वहाँ आ जाता है और आकर हलीमा से कहता है क्या आप मेरे बाबा को वापस लाई हैं? हलीमा रोते रोते चुप हो जाती है। इसके बाद तुर्गुत बमसी से पूछता है कि ये कौन है? बमसी रोते रोते कहता है भाई है ये, तुर्गुत भाई है ये। बमसी तुर्गुत का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे भाई, हमारे भाई आग में नहीं जले मेरे भाई। तुर्गुत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है। तुर्गुत कहता है क्या भाई को आग में जला दिया गया? फिर सब लोग रोते रोते जनाजा दोबारा उठाते हैं। दूसरी तरफ काराचाईसार कला में जश्न का समा होता है और सब लोग शराब व शबाब में गर्क होते हैं और वहाँ पर कमांडर आरिस भी आ जाता है। सब लोग कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कमांडर आरिस लुकास को कहता है दावत सुबह तक जारी रहेगी जब तक अर्तुगरुल बाहिफाजत दफन हो जाए, इन्हें पीने दो। आज काराचाईसार में हमारा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। लुकास कहता है जो हुक्म आपका जनाब। अगले सीन में बमसी जख्मी हालत में बिस्तर पर होता है
है और कहता है किस तरह इन्होंने आपको नजर आतिश कर दिया भाई वो आपको कैसे मार सकते हैं। बमसी कहता है मेरी वजह से हमारे भाई मरे हैं। अब्दुल रहमान कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं बमसी मेरे भाई। इसके अलावा सिपा सालार तुर्गुत की बात ठीक है, अब मुत्तहिद होकर खड़े होने और अपनी तलवारें हाथ में थामने का वक्त आ गया। तुर्गुत कहता है अब इंतकाम के अलावा कुछ और सोचना, हत्ता के सांस लेना भी हमारे लिए हराम है। अर्तुगरुल भाई के चले जाने के बाद यही वक्त है कि हम अपनी जानों को फरामोश कर दें और अपनी जानों को खतरे में डाल दें। इंतकाम हमारी नामूस का मामला है। हमने अपने सरदार और कबीले की इज्जत का पास रखना है। जो इस कर्जे से कतराए मौत इसके पीछे हो। सब लोग यकजबान होकर कहते हैं बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अर्तुगरुल के सिपाही उसका जनाजा उठाने के लिए खैमा में दाखिल होते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसका जनाजा उठाते हैं। जनाजा पढ़ाने के बाद कमांडर आरिस और उसके साथी भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद तुर्गुत कहता है अर्तुगरुल भाई मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपका इंतकाम जो हमें अता हुआ ना लिया गया तो मेरी तलवार नीले आसमान पर लहराती हुई मेरे अंदर दाखिल हो और खून से भरी हुई बाहर निकले। मेरी तलवार साफ मुझे काटकर खून से भरी निकले। फिर वहाँ मौजूद तमाम के तमाम लोग अपनी तलवारें लहराकर यही अज़म करते हैं। इसके बाद कमांडर आरिस अर्तुगरुल के जनाजे के पास आता है और घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। कमांडर आरिस कहता है मैं अपने पड़ोसी होने का फर्ज पूरा करने आया हूँ, माजरत चाहता हूँ। अर्तुगरुल साहब वो एक बहादुर और शानदार कमांडर थे। जो हुआ हम सबको इसका बहुत दुख है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा मैं आपके लिए मौजूद हूँ। दुमदार कहता है शुक्रिया। इसके बाद आरिस कोपैक से कहता है अर्तुगरुल के इंतकाल के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि सल्जूक सल्तनत सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए सियासत को अपनाएंगे। सादातीन कहता है इन इलाकों में सियासत को मैं संभालूंगा, फिक्र न करें। अब के बाद हमारी सियासत कशीदगी उकसाने के बजाय मुश्तरका मफादात के लिए काम करेगी। आरिस कहता है मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई अमीर सादातीन, मैं भी ऐसी हिकमत अमली का फल खाना चाहता हूँ। सादातीन कहता है वो मीठे फल अभी पके नहीं मगर पकने वाले हैं, मेरी तरफ से पैगाम का इंतजार करो। अर्तुगरुल को दफन करने के बाद तुर्गुत कहता है काई के बहादुर सरदारान, जानिसार माओ और बच्चों जो सिपाही बनेंगे, हवा का एक झोंका हमें झुका नहीं सकता। हम एक ही तूफान में खोने वाले नहीं हैं। हम तूफानी बारिश में तबाह नहीं हो सकते। हमने अपनी सरजमीनों और वतन के लिए आंसू बहाए, मेहनत की और अपने माथों पर पसीना बहाया। हमारे पास हमारा मकसद है। जो कोई भी अर्तुगरुल साहब पर यकीन रखता है। अगले सीन में अर्तुगरुल खैमा में मौजूद होता है। उसके साथ एक छोटा नौमौलूद बच्चा भी होता है। जैसे ही वो इस बच्चे को छूता है उसके सामने बहुत सारे मुहाफिज आ जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है आप लोग कौन हैं? वो सब लोग अदब से अर्तुगरुल को सलाम करते हैं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और अर्तुगरुल से कहता है हम आउज नस्ल की बोजौक शाख से हैं। हम ओतकान के तानड़ी दान से आए हैं। अर्तुगरुल साहब हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। आपके कदीम खैमे में लेटा ये बच्चा आसमान के नूर से रोशन आपका बेटा उस्मान है। इसका रहबर कुरान और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके बाद एक और सिपाही आगे बढ़ता है और कहता है ये हमारे आबाओ अजदाद आउस खान की रिवायात और इक़दार की पैरवी करे। इसके बाद वो एक तीर कमान को चूम कर अर्तुगरुल को वापस देता है। इसी तरह बाकी लोग भी अर्तुगरुल को तोहफे पेश करते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल अपने बेटे को उठाता है और कहता है अपने आबाओ अजदाद आउस से अहद के साथ मैं खुद को इन तीरों और कमान से जोड़कर रखूंगा। ये महर हमारे वतन हमारी रियासत का निशान है। हमारे आहनी नेज़े जंगल के दरख्तों की तरह बढ़ें। हम अपनी सरहदों को दरियाओं से और समंदरों के पार तक वसी कर दें। इसके बाद अर्तुगरुल अपने बच्चे को आसमान की तरफ बुलंद करता है और कहता है नीला आसमान हमारी छत और सूरज हमारा परचम हो। इसके बाद अर्तुगरुल बेहोशी की हालत में उस्मान उस्मान पुकार रहा होता है और शदीद जख्मी होता है। इसके बाद एक शख्स उसके लिए पानी लाता है और थोड़ा सा पानी अर्तुगरुल के मुंह में टपकाता है कर कार्रवाई करते हैं। दूसरा सिपाही कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम हमले के लिए जा रहे हैं। इसके बाद एक और सिपाही कमांडर नेकुलस के पास आता है और कहता है काई और चौदार के सिपाही सराय की जानिब सरपट दौड़े जा रहे हैं। नेकुलस कहता है लानत हो इन मनहूस तुर्कों पर, जितनी देर में हमने इनकी चाल को समझा इन्होंने अपने कबाइल से सिपाहियों को बुलवा लिया। इसके बाद अगले सीन में अर्तुगरुल पत्थर पर लगे खून को चेक करके कहता है
है, तुर्गुत बमसी मोहतात रहना, वेसिलियस अकेला नहीं है, वो और उसके साथ जो भी बदमाश हैं, वो हमको किसी घात में फंसाकर हमला करना चाहेंगे। तुर्गुत कहता है, भाई आज का दिन वो दिन है, वो अपने किए पर पछताएगा, आखिरी जाल का शिकार बनेगा। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान अपने सिपाही अजीज से कहता है, मुझे जहर देने के बाद क्या हुआ, सब कुछ मुझे बताओ। अजीज कहता है, सुल्तान अमीर सादा 3 ने अर्तुगरुल साहब को गिरफ्तार कर लिया। जब इब्नुल अरबी हमारी दावत पर सराय पहुँचे और इन्होंने आपके बारे में सुना तो वो आपका इलाज करना चाहते थे, लेकिन अमीर सादा 3 ने आपकी हिफाजत के पेश नजर इब्नुल अरबी को अंदर न आने दिया। सुल्तान कहता है, सादा 3 ने मुझे इस नेक आदमी से बचाया होगा। अजीज कहता है, अगर अर्तुगरुल साहब के सिपाही इसरार न करते तो इब्नुल अरबी को सिपाहियों के साथ बाजार से जबरदस्ती निकाल दिया जाता। सुल्तान मुअज्जम, अपनी हद पार करके मैं अमीर सादा 3 के अहकामात के खिलाफ गया और मैंने इब्नुल अरबी को सराय में आने दिया। सुल्तान कहता है, अमीर सादा 3 ने अर्तुगरुल साहब को क्यों गिरफ्तार किया, क्या इन्होंने इस बारे में कुछ कहा? सिपाही कहता है, सुल्तान मुअज्जम, इन्होंने कहा था कि इन्हें इन पर भरोसा नहीं, आपके तबीबों की आपके इलाज में लाचारी की वजह से मैंने इब्नुल अरबी का आपको देखने पर इसरार किया। सुल्तान कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक किया अजीज। इसके बाद एक सिपाही अंदर आता है। सीजन 3 किस्त नंबर 76 का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि ओराल कोतलुजा को कत्ल कर देता है। तो इसके बाद जावदार कबीले के लोग ओराल के सिपाहियों को मलामत कर रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं, शर्म करो तुम गद्दारो, शर्म करो, तुम गद्दार हो, कातिल हो, तुमने अपनी इकदार को पामाल किया है। और इतने में ओराल भी वहाँ आ जाता है। ओराल आते ही कहता है कि ना शुक्रे कमीने लोगो, मैं तुम्हें जुल्म से निजात दिलाने आया हूँ जो तुम पर उठाया गया है, मैं तुम्हारी खोई हुई शान लौटाने आया हूँ, क्या तुम मेरी इताअत करने से मज़ाहमत करोगे? जावदार कबीले में से एक आदमी आगे बढ़ता है और कहता है, हम कभी तुम्हारी बैत नहीं करेंगे, हमारे सरदार आलियार साहब हैं। इतने में एक और आदमी भी आगे बढ़ता है और कहता है, यहाँ असल जालिम तुम हो, तुम अपने ही लोगों को डरा धमका रहे हो। ये सुनकर आलियार उनकी गर्दनों पर वार कर देता है और उन्हें कत्ल कर देता है। ओराल जावदार कबीले से कहता है, जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा इसका अंजाम यही होगा, क्या इनके अलावा कोई और है जो कुछ कहना चाहता है? इसके बाद ओराल आगे चला जाता है। वहाँ पर ओराल के हामी कहते हैं कि आपकी सरदारी कायम रहे ओराल साहब, फतह हमारी है। इसके बाद ओराल एक चबूतरे पर जाकर खड़ा होता है और कहता है, जावदार कबीले के मुअज़्ज़िज़ सरदारान, आखिरकार हमारे कबीले में इंसाफ कायम हो गया, हमने अपने बाबा का खैमा और कबीला इन गद्दारों के हाथों से वापस ले लिया। अब ये इंतकाम का वक्त है। अर्तुगरुल और आलियार दोनों को भी वही मिलेगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। इनकी सरजमीनों के वाहिद हुक्मरान जावदार हैं और आपको इन बहादुर सिपाहियों के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने इस फतह को मुमकिन बनाया। इसके बाद अगले सीन में वेसिलियस अपने सिपाहियों के साथ एक मैदान में होता है और उसके सामने एक तीर आकर गिरता है। वेसिलियस से एक सलीबी कहता है कि लगता है ओराल साहब ने अपना कबीला संभाल लिया है। वेसिलियस कहता है कि उम्मीद है ओराल अब तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। जब आलियार कबीले वापस आएगा तो इसके सामने एक खूबसूरत मंजर होगा। इसके बाद ओराल, अर्तुगरुल और दुमदार को अपने सिपाहियों समेत वापस आते हुए देखा जा सकता है। दूसरी जानिब ओराल के हामी ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं और ओराल ने असलहान खातून, हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और हलीना खातून को जमीन पर कैद करके बिठाया होता है। इतने में हलीना खातून कहती है कि बमसी कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए तुम? हलीमा सुल्तान कहती है कि अम्मी जान, मैंने कहा था जब तक ये आदमी जिंदा है ये अपना बदला लिए बगैर नहीं रहेगा। हाइमा खातून कहती है, जब तक अर्तुगरुल जिंदा है ये हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता, मेरा बेटा खिजर की तरह वक्त पर आएगा। हलीमा सुल्तान कहती है, कैसे अम्मी जान, इन्हें तो पता भी नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इस वक्त एक खतरनाक खाई में हैं। हाइमा खातून कहती है कि इस बेगैरत के सामने अपना खौफ मत दिखाओ, अब हमारा काम इस बेगैरत को मशगूल रखना है जब तक अर्तुगरुल आता है। इसके बाद असलहान खातून ओराल से कहती है, ओराल तुम जिसके मुस्तहिक हो तुम्हें मिलकर रहेगा। इसके बाद ओराल असलहान खातून के पास आता है और कहता है, असल में तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, तुमने तो इन गद्दारों का साथ दिया, तुमने अपने भाई का इंतखाब नहीं किया
किया बल्कि इसके दुश्मनों का। असलहान खातून कहती है एक नीच आदमी कभी राह रास्त पर नहीं आ सकता, तुम कभी इससे नहीं बच पाओगे। ओराल कहता है फिक्र न करो, मुझे ये मामला खत्म करने दो, फिर मैं तुम्हें सादतीन के पास वापस भेज दूंगा। लेकिन वो भी गमगीन होगा, उसे भी पता चलेगा कि मुझे आधे रास्ते पर छोड़ने का क्या मतलब है। इसके बाद वेस्लियस अपने सिपाहियों के साथ एक जंगल में होता है और उसके पास एक सिपाही दौड़ा चलाता है और वो वेस्लियस से कहता है जनाब अर्तुरुल और आलियार घोड़ों पर कबीले की तरफ सरपट जा रहे हैं। वेस्लियस कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, ये अर्तुरुल कहाँ से आ गया? दूसरा सिपाही कहता है कि यकीनन इन्हें हमले की इत्तला मिल गई, यकीनन इन्होंने जिरगा मुलतवी कर दिया वरना इतना जल्दी न आते वो। इसके बाद अगले सीन में ओराल अपनी बहन असलहान से कहता है मैं चौदार के सरदार जानदार साहब का बेटा ओराल हूँ। मैंने पुख्ता अहद किया था कि मैं अपने बाबा और बेटे का खून कभी माफ नहीं करूँगा और तुम देखोगी कि कैसे मैं ये वादा इज्जत के साथ पूरा करूँगा। हाइमा खातून कहती है कैसे इज्जत ओराल, तुम कब से इज्जत वाले हो गए? जब तक मेरा अर्तुरुल जिंदा है तुम सिर्फ एक आवारा औरत की तरह जहर उगल सकते हो, बस इंतजार करो, तुम जिस चीज के हकदार हो तुम्हें मिल जाएगी। ओराल कहता है अर्तुरुल और आलियार दोनों इससे बेखबर हैं, तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। हाइमा कहती है ओराल तुम्हारे हाथ से तो बहुत से लोग बच चुके हैं, तुम हो कौन, किस पर इन्हिसार करके तुम इतने मगरूर हुए फिरते हो? इसके बाद ओराल तलवार निकालकर हाइमा खातून पर हमला करने लगता है और असलहान खातून कहती है रुको, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, ऐसा मत करना, हर कोई तुम्हें बुज़दिल के तौर पर याद करेगा जिसने औरतों को मारा, इन्हें छोड़ दो, अगर तुम में इतनी जुर्रत है तो अपनी तलवार मर्दों पर तानो। हाइमा खातून कहती है मेरी बच्ची अर्तुरुल के आगे इसका जोर नहीं चलता, तुम इस आदमी से और क्या तवक्का कर सकती हो जिसने दुश्मन के गले में पनाह ली है। हाइमा खातून मजीद कहती है तुम्हारे पास जो तलवार है वो सिर्फ औरतों के लिए है। इसके बाद ओराल हाइमा खातून से कहता है तुम्हारा बेटा कहाँ है वो आए और तुम्हें बचाए, देखते हैं कि मेरी तलवार इसके लिए काफी है या नहीं है। इसके बाद हलीमा सुल्तान कहती है अगर अर्तुरुल साहब को इसकी इत्तला मिल गई होती तो अब तक तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा हो चुका होता ओराल। इसके बाद असलहान कहती है तुम एक फरेबकार गद्दार हो जो घात लगाकर हमला करता है। इसके बाद ओराल अपनी बहन असलहान को उठाकर अलग कर लेता है और कहता है अब तुम देखोगी जिन गद्दारों ने भाइयों के दरमियान गड़ा खोदा कैसे अंजाम तक पहुँचेंगे। इसके बाद ओराल इन तीनों खवातीन की जानिब बढ़ता है। हलीमा सुल्तान कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देती है। हाइमा खातून कहती है शहादत हमारे लिए एजाज है और अल्लाह अकबर का नारा लगा देती है। इसके बाद ओराल दोबारा तलवार तान लेता है। इतने में असलहान खातून दूर से चीखती है और कहती है मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी रगों में तुम्हारा खून है, रुक जाओ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। इतने में अर्तुरुल भी वहाँ आ जाता है और ओराल पर तीर से हमला कर देता है और अर्तुरुल के तमाम सिपाही तीर चला देते हैं और सबको एक एक करके मार देते हैं। इसके बाद बकाया बच जाने वाले सिपाहियों को अर्तुरुल कहता है पीछे हट जाओ। इसके बाद अर्तुरुल कहता है कब से तुर्कों के इक़दार में ये रिवायत पड़ी है कि खवातीन को ढाल बनाकर सरदारान को फंसाया जाए। ओराल तुम्हारा ये बराए नाम इंसाफ काफिरों के इक़दार में भी नहीं लिखा हुआ। इसके बाद ओराल अपने सीने में लगा हुआ तीर काट देता है। ओराल कहता है तुम मुझे सरदार ओराल कहो, अब से इस कबीले का सरदार मैं हूँ। इसके बाद आलियार ओराल से कहता है ये जान लो ओराल तुम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे बाबा के खेमे और उनकी तलवार जो तुमने पकड़ी हुई है इसके लिए बदनामी का बाइस हो। ओराल कहता है तुमने अपने भाई की सरदारी लेकर अर्तुरुल की सरपरस्ती की, हर किस्म की चाल से अपने भाई को धोखा दिया, मैंने अपना हक ले लिया, समझ गए ना तुम। इसके बाद आलियार कहता है कि क्या तुम इतने गिर गए हो कि सिपाहियों से उनके अपने सरदारान को मरवा रहे हो। इसके बाद अर्तुरुल कहता है जब तक आसमान न गिर पड़े, जब तक जमीन न फट जाए, कोई तुर्क कौम को नहीं तोड़ सकता और न इसकी रिवायत को। ओराल तुमने कोशिश की, अब तुम्हारा कट, ओराल तुमने कोशिश की, अब तुम्हारा कीमत चुकाने का वक्त आ चुका। इसके बाद अर्तुरुल कहता है कि सिपाहियों पीछे रहो, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि तुम इन जमीनों हमारे भाइयों की सरजमीनों और हमारी रियासत के लिए भी मसाइब लाओगे। अगर तुम ओराल के पीछे जाओगे तो तुम्हारी मंजिल वाज़ेह होगी। अपनी इक़दार और इंसाफ के आगे हथियार फेंक दो। इसके बाद ओराल हुक्म देता है कि सिपाहियों इन सबको मार दो। इसके बाद बुज़दिल ओराल हलीमा सुल्तान को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। ओराल अर्तुरुल से कहता है कि पीछे रहो वरना मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। अर्तुरुल कहता है मेरी बीवी को छोड़ दो, मर्द की तरह लड़ो। इसके बाद ओराल दोबारा से अपने सिपाहियों और सरदारों को हुक्म देता है कि इन पर हमला कर दो। इस बार ओराल का कोई भी सिपाही हमला नहीं करता और अपने हथियार जमीन पर फेंक देते हैं। इसके बाद ओराल बौखला जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्या कहा कि हमला करो। ओराल के
तमाम सिपाही घुटनों के बल बैठ जाते हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान ओराल के हाथ पर काट देती है और अर्तुरुल जल्दी से उसकी तलवार को पकड़ लेता है। इसके बाद अर्तुरुल ओराल पर टूट पड़ता है। ओराल नीचे बैठकर कहता है, अर्तुरुल मैं तुम्हारी नस्ल का नामो निशान मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा डरावना ख्वाब बनूंगा। अर्तुरुल ओराल का सर तन से जुदा कर देता है। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस कहता है, जब तक तुर्क एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद रहेंगे हम तुर्कों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हमारी कुव्वत काफी नहीं होगी। मैं शहनशाह की तरफ अर्जी भेजूंगा, मैं फौजी दस्ते मांगूंगा। यकीनन हम तुर्कों को काराचाइसार किले की दीवारों में दरार डालने से नहीं रोक सकते। इसके बाद वेस्लियस अपने किले में वापस चला जाता है। इसके बाद चौलपान खातून आईने के सामने बैठकर बातें कर रही होती है और कहती है, मेरे खुदा मेरा कोई बाकी नहीं रहा लेकिन तू है। इसके बाद वो एक चाकू पर जहर लगाती है और कहती है, अब कोई रहम नहीं, बस सिर्फ गुस्सा। मेरे खुदावन मुझे ताकत दे, बाबा मैं आपका इंतकाम लिए बगैर आपके पास नहीं आऊंगी। आओ वेस्लियस तुमसे मिलते हैं, मेरे मेहमान बनो, मेरा जहर चखो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस के सिपाही अर्तुरुल के जासूसों के पीछे भाग रहे होते हैं। अर्तुरुल के भेजे हुए जासूस कहते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे राज फाश हो चुके, वो हमारे ताकुब में हैं। वेस्लियस के सिपाही कहते हैं, जल्दी करो इन्हें पकड़ो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस चौलपान खातून के पास आता है। वेस्लियस कहता है, तुम कई हफ्तों से बाहर नहीं निकली, मुझे लगा कि जैसे तुम मर भी गई होगी। चौलपान कहती है, अपना इंतकाम लिए बगैर मरने का कोई इरादा नहीं है, मैं तुम्हारे अधूरे काम को पूरा करूंगी। वेस्लियस कहता है, तुम ये कैसे करोगी, जरा अपने आप को तो देखो, तुम इंतकाम की बात कर रही हो, हालांकि ये कमरा छोड़ने की भी तुम में हिम्मत नहीं है। चौलपान कहती है, अगर आपके पास ताकत थी तो आपने ओराल को क्यों नहीं बचाया, आपने उसे अर्तुरुल पर क्यों छोड़ दिया, इसने आप पर एतमाद किया। वेस्लियस कहता है, अपने शौहर की तरह बेवकूफी की बातें मत करो चौलपान, वो खुद अपनी हिमाकत का शिकार हुआ। यहाँ पर किस्त नंबर 76 का इख्तिताम होता है और कहता है, दुमदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान कहता है, आने दो। दुमदार सुल्तान से कहता है, अर्तुरुल साहब के हुक्म से हम आपकी हिफाजत को यकीनी बनाने आए हैं। काई और चौदार के सिपाही आपकी खातिर जान कुर्बान करने को तैयार हैं सुल्तान साहब। सुल्तान कहता है, दुमदार साहब मुझे आपकी आंखों में आपके भाई की दिलेरी नजर आती है। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस दौड़ रहा होता है और एक जगह पर रुक जाता है और कहता है, रुको रुको, ये घात लगाने के लिए मौजू जगह है, वो हमारे कदमों के निशानात का पीछा करते हुए काफी करीब हैं। सिपाही कहता है, लेकिन जनाब आली हम बहुत थोड़े हैं। वेस्लियस कहता है, इन तीर अंदाजों ने काफी का काम तमाम कर दिया है, इसलिए हम बराबर हैं। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास हाइमा खातून और असलहान खातून आती हैं। सुल्तान कहता है, अमीर सादातीन ने आप। सुल्तान अर्तुरुल और सादातीन कोपैक खाना खाने के लिए हानली बाजार में मौजूद होते हैं। सुल्तान कहता है, बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। सुल्तान बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी का टुकड़ा सादातीन कोपैक को देता है। सादातीन कोपैक रोटी का टुकड़ा लेकर अपनी अंगूठी से जहर पानी के प्याले में मिला देता है। इसके बाद अर्तुरुल सुल्तान को कहता है, कले का मुहासरा तवील नहीं होगा, वेस्लियस दिफा के बजाय हमले को तरजीह देगा। अभी हमने ये नीका से आने वाले सबसे बड़े दस्ते के आने से अखज़ किया है, अगर आपकी फौज सामने न आए फिर वो हम पर हमला करेगा। जब वो हम पर हमला करता है तो फिर इसके छुपने की कोई जगह नहीं होगी। सादातीन कोपैक कहता है, इसका मतलब है कि जब वेस्लियस किले से बाहर आ जाएगा आप इससे लड़ेंगे। इसके जवाब में अर्तुरुल कहता है, हम इस दिन के इंतजार में हैं जब इसकी लाश इसके शहनशाह को भिजवाएंगे अमीर सादातीन। इसके बाद सुल्तान जहर मिला पानी पीता है। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस अपने किले में खाना खा रहा होता है। वेस्लियस अपने दोस्त निकोलस से कहता है, तुम्हें पता है कि एक कौवा जानवर की लाश पर कैसे पहुंचता है जो कभी बहुत अजीम और ताकतवर था। निकोलस कहता है, कैसे? वेस्लियस कहता है, सबको उलझन में डालकर, इलाके में जानवरों को परेशान करके। ये जलता है, ये अपने शिकार में किसी को शामिल नहीं करना चाहता, और अगर कौवा अपना शिकार खोने वाला हो फिर वो छोटा सा काला सा बुरी सी आवाज वाला परिंदा एक दरिंदा बन जाता है। निकोलस कहता है, आप अर्तुरुल की बात तो नहीं कर रहे? वेस्लियस कहता है, नहीं, अमीर सादातीन की बात कर रहा हूँ। वो अर्तुरुल से निमटने में नाकाम रहा और सोने पर सुहागा सुल्तान अर्तुरुल को मिलने चला आया। और एक नई बात, मुझे यकीन है कि सुल्तान की तरफ से अर्तुरुल को दी गई इज्जत अमीर सादातीन के हसद को उभारेगी। निकोलस कहता है, ये कभी भी अमीर सादातीन के मफादात में नहीं होगा, वो जलेगा और परेशान
निशान होगा। वेस्लियस कहता है बिल्कुल इसी कौवे की तरह, और ये हमारे मफादात के मुताबिक होगा। निकोलस कहता है अगर अमीर सादातीन आपके दावे के मुताबिक होशियार हुआ शायद वो हमारा काम आसान कर दे। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान बाकी भी जहर मिला पानी पी लेता है। इसके बाद सुल्तान सादातीन से कहता है आपका इस मौजू पर क्या ख्याल है। सादातीन कहता है सुल्तान मैं वेस्लियस को अच्छी तरह जानता हूँ। अर्तुगरुल साहब बिल्कुल ठीक हैं, वो तुर्कों का खून बहाने के दर पे है। तुर्कों की जानिब अपनी नफरत की वजह से वो अपने आप को कले में महदूद तो करेगा, लेकिन एक पागल कुत्ते की तरह वो अपनी कछार को शिकार में दांत घुसेड़ने की तलाश में छोड़ेगा। इसकी बाकी की बुराइयों का क्या जिक्र करूं। इतने में सुल्तान खांसने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अर्तुगरुल कहता है सुल्तान क्या आप ठीक हैं। सादातीन कोपैक सुल्तान से कहता है क्या आपको पानी का एक घूंट चाहिए। इतने में सुल्तान नीचे गिर जाता है। सादातीन कोपैक कहता है इन्हें यहाँ जहर दिया गया है, हमारे सुल्तान को जहर दिया गया है, जल्द से जल्द इनके तबीब को इतला दो। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है अमीर सादातीन आपको कैसे ये ख्याल आया। सादातीन कोपैक कहता है इस सवाल का जवाब मुझे नहीं बल्कि तुम्हें देना होगा। इस जगह पर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अर्तुगरुल कहता है अमीर सादातीन इस मुश्किल वक्त में अपने अल्फाज पर गौर करें। सादातीन कोपैक कहता है मुहाफिजो अर्तुगरुल साहब की तलवार ले लो। सादातीन मुहाफिज को कहता है इन्हें गिरफ्तार कर लो। अर्तुगरुल अपनी तलवार मुहाफिज के हवाले कर दो। अर्तुगरुल कहता है अमीर सादातीन आप क्या सोचकर ये कर रहे हैं। इतने में सुल्तान का तबीब भी आ जाता है। तबीब कहता है हट जाओ, पीछे हट जाओ, क्या ये ठीक है। इसके बाद हकीम आर्तुग सादातीन से कहता है अमीर हजरत क्या बात है। सादातीन कोपैक कहता है सुल्तान को जहर दिया गया है, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। इसके बाद सादातीन कहता है और अर्तुगरुल साहब को गिरफ्तार कर लो। आर्तुग कहता है अमीर हजरत आप क्या कह रहे हैं। अर्तुगरुल साहब इस आदमी को जहर क्यों देंगे जिसने इनकी जान बचाई। सादातीन कोपैक कहता है सराय के बाहर काई सिपाहियों की निगरानी करो, वो फौरन अपने कबीले वापस चले जाएं। इसके बाद आर्तुग कहता है अमीर हजरत मुझे अपने वसी तब्बी इल्म को पेश करने की इजाजत दें। सादातीन कोपैक कहता है सुल्तान के अपने तबीब हैं, वो इनकी निगहदाश्त करेंगे। अब बगैर ताखीर के हानली बाजार से निकल जाओ। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान का तबीब कहता है हमें इनको क्या करवानी है, जल्दी करो। इसके बाद अगले सीन में अर्तुगरुल सादातीन कोपैक से कहता है अमीर सादातीन आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, आप ऐसी साजिश के मुर्तकिब कैसे हो सकते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल सादातीन कोपैक से कहता है ये किस किस्म का खेल है, आपको इसमें फंसाकर आपको मेरे खिलाफ उकसाया गया है। सादातीन कोपैक कहता है दुआ करो कि इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर न आए, वरना अपने मरने का तरीका तुम खुद मुंतखब कर लो। के सिपाहियों को बाजार से निकल जाने का हुक्म दिया, ताहम आप तुर्क सरदारान के साथ हानली बाजार आए। हाइमा खातून कहती है हम ना तो आपको और ना अर्तुगरुल साहब को अकेला छोड़ सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि इब्नुल अरबी आपका इलाज कर पाए। सुल्तान कहता है अच्छा तो इब्नुल अरबी मेरी मुसीबत को इलाज ना करते और अगर अमीर सादातीन अर्तुगरुल साहब को इनके इल्जामात से बरी ना करते तो फिर आप क्या करते। हाइमा खातून कहती है इस सूरत में हम हक के रास्ते की पैरवी करते। असलहान खातून कहती है हमारी रियासत के साथ वफादारी और हमारे ईमान की वजह से हम ना तो आपको और ना अर्तुगरुल साहब को अमीर सादातीन के गलत फेल का शिकार होने देते। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस नीका जिंदाबाद का नारा लगाकर अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। अर्तुगरुल कहता है वेस्लियस सिर्फ तुम इसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास अजीज आता है और कहता है अर्तुगरुल साहब के जख्मी सिपाही बाजार से वापस आ गए हैं, इन सिपाहियों में से एक सिपाही आपसे मिलना चाहता है। सुल्तान कहता है इसे अंदर भेजो। सुल्तान सिपाही से कहता है क्या हुआ था मुझे आगाह करो। सिपाही कहता है सुल्तान मुअज्जम हमने वेस्लियस और इसकी फौज को नेस्तो नाबूद कर दिया था। जब अर्तुगरुल साहब वेस्लियस को मारने ही वाले थे कुछ आदमी वेस्लियस की मदद को आन पहुंचे। अर्तुगरुल साहब एक तीर से जख्मी हो गए थे। हाइमा खातून कहती है या मेरे अल्लाह इन्हें महफूज रखना। सुल्तान कहता है कौन थे वो तीर अंदाज। सिपाही कहता है हम नहीं जानते लेकिन हमारे सिपाही इनके पीछे गए हैं। सुल्तान कहता है अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं। सिपाही कहता है वेस्लियस भाग गया, अर्तुगरुल साहब सिपाहियों के साथ इनके ताकुब में गए हैं और इन्होंने मुझे आपको जो हुआ इसकी इतला देने के लिए भेजा है। हाइमा खातून कहती है या अल्लाह इनकी मदद करना। इसके बाद अगले सीन में सादातीन कोपैक गुस्से में होता है और कहता है अर्तुगरुल बच गया। जाबिर ये जंगजू जिनकी तारीफों के तुमने पुल बांध दिए थे कामयाबी से ये काम मुकम्मल क्यों ना कर सके। सिपाही कहता है अमीर हजरत वो अपने फरीदे की खातिर अपनी जानें दे देंगे, वो अर्तुगरुल का शिकार कर लेंगे और वो इसको मारे बगैर वापस
वापस नहीं आएंगे या वो सब मर जाएंगे। सादातीन कहता है एक दिन सब मर जाएंगे। क्या ऐसा ही नहीं जाबिर? अगर वो अपना मकसद पूरा करे बगैर मर भी जाए तो मेरे किस काम के। इसके बाद अर्तुगरुल और वेसिलियस की लड़ाई होती है और अर्तुगरुल वेसिलियस की गर्दन काट देता है। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है तमाम जालिम जहन्नम में हमेशा जिंदा रहेंगे। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है।